Hi people, welcome back to my channel and this is the question paper for Basic Statistics for Economics. BA program is the course. Semester 2 and DSC पेपर है. ये तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे कैंडिडेट्स के लिए. आगे क्वेश्चंस भी देख लेते हैं किस प्रकार से हैं. So questions are in this way कि what are the types of random samples, explain any two of them and describe how the mean compares to the median of for a distribution which is skewed to the right and skewed to the left. ये हम डायग्राम के साथ ही बताएंगे. Explain how populations and samples differ, define statistical thinking, calculate variance, standard deviation, coefficient of variation for the following data 10, 12, 14, 16, 13. ठीक है. Then we have explained any two of the graphical descriptive methods for quantitative data and any one of the graphical descriptive methods for qualitative. Then we have to calculate the mean, median, mode for each of the following samples A and B. I hope they are very clearly visible. And then we have for any set of data what can be said about the percentage of measurements contained in each of the following intervals using Chebyshev's rule and empirical rule both. मैं ये गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ, मेरे को पता है, तुम बताना ये क्या है. ठीक है. And then we have considered the following sample of 5 measurements 8, 9, 7, 8, 10. Calculate the range S square and S. I hope the questions are very clearly visible. आगे questions देख लेते हैं कैसे हैं. So we have to add 5 to each measurement and repeat part A. Then we have part 2 of the question paper which is of probability, I guess. 2 dice are tossed. Find the probability of getting an odd number on the first die or a total of 8. A bag contains 4 white, 5 red and 6 black balls. 4 are drawn at random. अच्छा मतलब 4 balls निकाल लिए randomly. Find the probability कि no balls drawn is black and all like are of the same color. जो बचे हुए balls हैं वो same color के हैं, right? All are of the same color. And then we have इस क्वेश्चन को यार मैं शायद गलत भी समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने तो ये बहुत टाइम पहले पढ़ा था, मेरे को याद भी नहीं है ढंग से. उसके बाद से मेरे को स्टैट्स नहीं पसंद, मैं सच बताऊँ तो. नॉट ओनली ड्यू टू प्रोबेबिलिटी बट स्टैट्स में और बाकी चीज़ें भी हैं ऐसी जो नापसंद करने वाली हो सकती हैं. बट जिसको प्रोबेबिलिटी पसंद है उसको ये क्वेश्चन एकदम से ही पढ़ के समझ भी आ जाएगा. तो आगे देख लेते हैं. एन urn contains 9 balls, 2 of which are red, 3 blue and 4 black. Same probability का question है. 3 balls are drawn at random. What is the chance that they are of the same color? Then we have like calculation sort of. Find the relation between P, Q, R for the following case. Events A bar and B bar are mutually exclusive. A is sub-event of B. दिन यही questions हैं हिंदी में. यार किताब जितना बड़ा क्वेश्चन पेपर है पता है. फिर हमारे पास है फॉर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स A एंड B. P ब्रैकेट में A इज़ 0.4 एंड P ब्रैकेट में B इज़ 0.2. फाइंड P ब्रैकेट में A इंटू B. पता नहीं ये साइन को समझ नहीं आ रहे सिम्बल्स. द कंटेंट्स ऑफ अर्न्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आर एज फॉलोज. 1 वाइट, 2 ब्लैक, 3 रेड बॉल्स. 2 वाइट, 1 ब्लैक, 1 रेड बॉल्स. मतलब ये चांसेस हो सकते हैं. 1 urn is chosen at random and 2 was drawn from it. They happen to be white and red. Okay. What is the probability that they come from urn 3? Okay. तो यही क्वेश्चन हिंदी में. आगे देख लेते हैं किस प्रकार से हैं क्वेश्चंस. जैसे कि मैंने बताया 16 पेज का क्वेश्चन पेपर और किताब जितना ये जो है बड़ा है तो वीडियो भी बड़ी होगी थोड़ी सी. A company is testing a new drug in clinical trial. 20% of patients who took the drug experienced side effects. What is the probability that 3 out of 10 patients who take the drug will experience side effects? A gardener knows from his personal experiences that 2% of seedlings fail to service on transplantation. Find the mean and standard deviation of the distribution of rate of failure to service in a sample of 400 seedlings. 5 marks के 2 questions. Okay. Then we have question number 9 का part 1. A random variable x follows the continuous uniform distribution with a lower limit of 750 and upper limit of 800. Calculate mean and standard deviation for the distribution. What is the probability that x is less than 770? And then we have explain probability density function and its property, which is a 4 mark question. And then we have like
Another question, what is the probability of an individual scoring above 500 on the GMAT? How high must an individual score on the GMAT in order to score in the highest 5%? Write a short note on the standard normal distribution. अच्छा, ठीक है. देन वी हैव पार्ट 4 ऑफ द क्वेश्चन पेपर, जो कि मैं रीड नहीं करने वाली, बट समझ में तो आ रहा होगा, लाइक दिख रहा होगा ना. यूज़ अ 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल टू एस्टिमेट पॉपुलेशन मीन LOS फॉर द स्टेट्स हॉस्पिटल्स. हाउ विल यू इंटरप्रेट द इंटरवल? आगे क्वेश्चन दिखा देती हूँ मैं. In what ways are the distribution of the Z statistics and T-test statistics alike? How do they differ? Explain. अच्छा, Z टेस्ट और T टेस्ट की सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बतानी है, ये तो मेरे को भी पता है, ठीक है. इफ़ यू वांट मैं पढ़ाऊँ, प्लीज़ डू सजेस्ट. देन यूज़ द P वैल्यू अप्रोच टू कंक्लूड. अच्छा, ये सम सा दिया हुआ है, तुम लोग पढ़ लेना अच्छे से, 6 नंबर का क्वेश्चन है, बी प्रिपेयर. देन एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिजेक्शन रीजन. अच्छा, जो ऐसे करके डायग्राम बनता है ना नॉर्मल कर्व का, यूँ करके ऐसे करके जो बीच में होता है वो हमारा होता है एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस, और आसपास हमारे होते हैं एरिया ऑफ रिजेक्शन. दो, 1 टेल और 2 टेल में बनता है ये. देन यू हैव टू एक्सप्लेन 1 टेल टेस्ट, नल हाइपोथेसिस, रीजन ऑफ रिजेक्शन. और ना डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल भी बोला जाता है. अब मेरे को ये अच्छे से याद नहीं, मैंने पहले पढ़ा था, मैं फिर से बता रही हूँ, अभी रिसेंटली तो पढ़ा नहीं है, वरना मेरे को पता होते क्वेश्चंस के आंसर बहुत अच्छे से. बट हाँ, डायरेक्शनल शायद हम बोलते हैं 2 टेल्ड को, एंड 1 डायरेक्शनल को हम नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं. आई डोंट नो, तुम लोग करेक्ट कर देना अगर मैं गलत भी बता रही हूँ तो. देन वी हैव व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय P वैल्यू ऑफ अ टेस्ट, ठीक है. देन व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू फॉर विच द नल हाइपोथेसिस वुड बी रिजेक्टेड. इसी क्वेश्चन का पार्ट है, विच इज़ अ 4 मार्क्स क्वेश्चन. आगे देख लेते हैं क्वेश्चंस. अच्छा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो जाता है यहाँ पे. ये वो दिया हुआ है तुम्हें वैल्यूज़ चेक करने के लिए. Z टेस्ट और T टेस्ट में जो दिया होता है ना, जिससे तुम वैल्यूज़ देखते हो अल्फ़ा से, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से, वो दे रखा है. एंड DF की वैल्यू भी चेक करनी हो तो उसके लिए टेबल्स दे रखे हैं, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए किसी बच्चे को और किसी की कोई वैल्यू गलत ना आए. तो ये सारा सोर्स दे रखा है तुम्हें. अब ये 2 पेजेस में चिपक गए हैं, सॉरी. देन आगे यही है, क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो गया. एंड इसीलिए शायद क्वेश्चन पेपर बड़ा लग रहा था ना बहुत, क्योंकि इसमें ये सब भी अटैच्ड है साथ में, वरना अलग से मिलता है पेपर के टाइम. तो ये सारा दिया हुआ है, ठीक है. अपेंडिक्स बोलते हैं इसे. ओके, सो थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए. आई होप इट वुड बी हेल्पफुल, एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़.